कोई बात नहीं, आप तो मेरे को एक इतना सा बता दो कि आपके मन में आया होगा ना प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा। Yes. मैडम प्लीज, लॉर्डशिप, मैंने कितने ऑर्डर्स किए हैं? नहीं सर, नहीं इसमें किए? आप ही करेंगे, इसमें आप ही करेंगे, आप ही दिलवाएंगे हमें। मैडम मैंने कब कहा कि काट दो? आप तो कब्जा वापस ले लो, बस दैट इज ऑल। कब्जा, कब्जा कैसे वापस ले लेंगे? मुझे नहीं मालूम, मेरा सर दर्द थोड़े है। पर्सनल बात की तो इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। यस सर। परंतु आपका जो स्टेटस और आपकी जो लेंथ ऑफ प्रैक्टिस है उसके हिसाब से कह सकता हूं कि दैट ही माइट हैव बिकम पुअर सब्सिक्वेंटली। इसलिए तो आपकी ज्यादा जिम्मेदारी थी कि आप पूरी मेहनत से पढ़ के आते। सर मैडम मेरी कोर्ट में एडमिशन इतना इजी नहीं है, इसलिए तो थोड़ा सा टाइम। और अब ये मैं मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गया मुझे, बट मैंने कभी नहीं देखा कि आपने कुछ ऐसी बात कही हो कि जिससे लगे कि यू आर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम द क्वेश्चन। तो आप अगर कह रहे हैं कि ये पेड़ भी ले लो, ये खेत भी ले लो, ये गौशाला भी ले लो, प्लीज टेल मी और प्लीज पॉइंट आउट इवन अ सिंगल सर्कुलर और एनी एक्ट which permits a person to retain the possession till his application for patta is finally decided. Now, what will be the status of the present applicant? Because in the order, Madam, this is not a civil suit. This is not a civil suit. Try to understand the distinction. Yes. Although I am sitting as a High Court judge, Lordship, but I am exercising my supervisory powers. Lordship, I have to consider whether the authorities have acted within the four corners of their jurisdiction or not. Yes, Lord. Had it been a first appeal or second appeal, I would not have put that question to you. Lordship. That question is in the light of the different scopes of jurisdiction. Lordship. Under different proceedings. Lordship. Now, declare your title by holding that you have perfected your title by way of adverse possession. Certainly not. That cannot be done. That could. Now, the another method of granting you liberty is that in case if there is any circular Lordship. or any act, any provision under the act, like 53A of Transfer of Property Act, Lordship. if you are in possession by virtue of agreement to sell, then you are entitled to protect your possession, provided you have also performed some part of your contract. So, like 53A, do you have any document, any circular, any act, any provision in your support that if a person who is in a possession of the property has moved an application for grant of patta, then he cannot be disturbed at all? I will find it out, Lordship. Now, that is the only question. Yes, I will. Now, as you said that she has now taken it otherwise, and अब आते हैं देखते हूँ, अब तो यहाँ से भी भगा दूंगी. Whatever it may be. Yes. But this is your submission. I have not raised any question on my own. Lordship. So there is no question of granting time to verify. That is the. Had it been that I have put any question on my own, then I can understand that you were taken by surprise. Lordship. But by making such a submission, you have invited the question from the court. I was just trying to brief this honorable court. Well, you are right, will be reflected. Sir, you are right, madam, you are right. You have every right to make every submission which is possibly available for the litigant. Lordship. I am not saying that you have raised an incorrect submission. This brushing order, my lord, it will be clear. Madam, the madam, intention fine. of the competent authority. Fine, if my madam, lord will fine. see चरनोई भूमि का लगा के मेरे ऊपर लगाए. कोई बात नहीं मैडम, मैडम कोई बात नहीं. आप तो मेरे को एक इतना सा बता दो कि आपके मन में आया होगा ना प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा. ये वाला नहीं आया लॉर्डशिप. नहीं आया? चलो मैडम आगे से आ जाया करेगा. अभी तो बता ही दो आप. हाँ मैं बता देती हूँ. I will read an impugned order. Madam, I will read. Madam, you are not claiming any title over the property in dispute. You are claiming some right by virtue of possession. Yes. Now, this is not a civil proceeding, so I cannot consider it from the point of view whether you have perfected your title or not. So I will try to point out before this honorable court the illegality in the orders of the commissioner and the jurisdiction of this honorable court. Right. Yes, sir. Right. Yes. So page 16, Lordship. Lordship, Madhya Pradesh, paragraph number 6, impugned order. मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्रमांक सच 4/12/2009 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 5/2/2009 के अनुक्रम में निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया गया है कि चरनोई के लिए आरक्षित भूमि को व्यापर्तित कर किसी भी व्यक्ति को कृषि प्रयोजन के लिए आवंटित नहीं किया जाए. फर्स्टली, माई लैंड इज नॉट चरनोई भूमि. मेरी आबादी की लैंड थी. सिंस 5 एकड़ आबादी में सर 5 एकड़ मेरी नहीं. मैंने तो सिर्फ एक घर बनाया है. मैंने पूरा नहीं मांगा है. उसमें सिर्फ अपने घर का एक छोटा सा प्लॉट मांगना है. अच्छा ठीक है. पूरे उसमें मैंने ये बताया है कि मैडम द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर वी हैव मेड ए टेंपल टू डेमोन्स्ट्रेट कि 5 एकड़ में मैंने क्या क्या किया है.
मैंने बताया कि मैंने उसमें एक टेम्पल बनाया है, गौशाला मैडम प्लीज। दुबे जी भी अपना नेट नेट खोल के देख रहे हैं। 2A मैडम। Yes. Abadi means the area reserved from time to time in a village for the residence of inhabitants thereof or for the purposes ancillary thereto, and any other cognate variation of this expression, such as village site or Gausthan, shall also be construed accordingly. अब आप देखो। Yes. मैंने पर्यावरण उद्यान बनाया है। निवेदन है। क्या सूर्य पर 2 पेड़ नीम के हैं, इसी भूमि से रोड निकली है, 2 पक्के, एक कंक्रीट, एक डामर, एक बेरखेड़ी गया टामर। Yes. इतना है। रोड के उत्तर साइड में 5 डेसिमल पे मकान बना है। Yes. देव जी का मंदिर बना है। Yes. जो आबादी है लगभग 60 डेसिमल में है, जिसमें शंकर जी का मंदिर, गौशाला, लाइट बाथ है। Yes. इसका पूर्व कसा नंबर जो कृषक भूमि है इसी में साइड में लगी हुई है। Yes. 154/1 मुख्यमंत्री जी ने 30 साल के पट्टे वाले पे आदेश पारित किया था कि मुझे Yes. 30 साल के लिए मिल जाएगा। Yes. आपने पूरा तो वो शहर बसाया हुआ है मैडम। इम्प्यूग्ड ऑर्डर के पैराग्राफ 5 में भी पूरा मेंशन है। अरे वो तो मैडम, अरे हम तो मैडम के बहस ही सुन रहे हैं। ये सब हो सकता है क्या आबादी लैंड में? आबादी लैंड में गौशाला तो होती है। अरे गौशाला ठीक है, आप चिंता मत करें गौशाला की। ये सारा चीज हो सकता है, खेती हो सकती है, गार्डन बन सकते हैं, टेम्पल बन सकता है, कुछ नहीं बन सकता मैडम। 5 एकड़ जमीन गौश आबादी लैंड, वहां पे पता नहीं 500 आदमी, अगर 50 डिसमिल भी अगर एक आदमी को मकान बनाने के लिए दिया जाए तो कितने लोगों की आप अधिकार क्षेत्र दबा के बैठे मैडम? नहीं 5 एकड़ तो मैंने लिया ही नहीं है। आई एम अ वेरी मैडम आई डोंट नो, आपने बोला, मैंने बोल दिया। मैंने कोई फाइंडिंग नहीं दी है। 5 एकड़ तो मैंने कोई फाइंडिंग नहीं दी मैडम, आपने कहा था, मैंने बोल दिया। हो सकता है 6 एकड़ हो। नहीं सर, 5 एकड़ पट्टा ही 4 पट्टे के लिए मांग की। 5 एकड़ आबादी लैंड में 5 एकड़ पट्टा। 5 एकड़ के लिए पट्टा नहीं मांगा है सर मैंने। अरे तो आप 50 डेसिमल की बात करो तो हम कहते हैं सिर्फ 50 डेसिमल तक छोड़ के बाकी सब निकाल के बाहर कर दो। हाँ ठीक है ना सर, ठीक है, 50 डेसिबल तो दीजिए मुझे। हाँ ठीक है। आर यू गिविंग एन अंडरटेकिंग? मैं कंफर्म कर लेती हूँ सर। अरे मैडम वो फाइल दूसरी ऑफिस में चली जाएगी। हाँ लगाए आप कंफर्म करने के चक्कर में। 50 डेसिमल कितना होता है सर? भाई सर मैं ये मैडम इस कोर्ट रूम से भी कम होता है। सर मैं इसको मंडे को आके ना मैडम प्लीज। सर ऑन दिस पॉइंट लेट मी मतलब क्या है, मैंने तो 2A पढ़वा दिया आपको। 2A पढ़ा है, मैं 248 के ऊपर रिसर्च करेंगे। वो कुछ नहीं है 248 में। 248 के आप तहसीलदार को बिना सर। मैडम प्लीज, लॉर्डशिप मैंने कितने ऑर्डर्स किए हैं? नहीं सर, इसमें आप ही करेंगे, इसमें आप ही करेंगे, आप ही दिलवाएंगे हमें इसमें। आई एम श्योर बिकॉज द रीजन इज फर्स्ट चरनोई तो भूमि है नहीं, सेकेंडली लॉर्डशिप इनका ये कहना है आबादी लैंड में 5 एकड़ चाहिए हमको। आप कमिश्नर होके कह रहे हैं कि आपकी अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। यू हैव आंशिक रूप से आपने कैसे स्वीकार की मेरी अपील को? आपने मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। मॉडिफाई करके सब मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहिए ना। क्यों? मैं तो सिर्फ आंशिक रूप से स्वीकार को पूर्ण रूप से निरस्त लिखूंगा, और क्या लिखना है? नहीं सर, पूर्ण रूप से निरस्त हो जाए, लेकिन उसके बाद की ऑब्जर्वेशन देखिए सर। वो दैट इज परफेक्टली ऑलराइट सर। दिस लेट मी डेमोन्स्ट्रेट दिस। यस मैडम, तो करिए ना। मैं मना नहीं मैं इसको सर, मैं इसको नो मैडम सॉरी, मैंने मना कहा किया आपको? मैं कहाँ डिक्टेशन देना शुरू किया? डिक्टेशन देना शुरू करने के बाद देन आई एक्सपेक्ट दैट द लॉयर शुड नॉट इंटरफेयर। उससे पहले तो मैं कभी मना नहीं करता। सर ही इज अ वेरी पुअर मैन। 5 एकड़ जमीन आबादी, 5 मैडम इतने 3-4 मंदिर बनाए हुए हैं, 5 एकड़ में खेती कर रहा है, इतना बड़ा सोशल सर्विस कर रहा है सर। कितने शीशम के पेड़ एंड यूकेलिप्टस नेचुरल है, प्लांटेड बाय हिम, नेचुरल है। वी डू नॉट क्लेम, हम क्लेम नहीं कर रहे हैं उसको। मैडम मैंने कब कहा कि काट दो? आप तो कब्जा वापस ले लो बस, दैट इज ऑल। कब्जा कैसे वापस ले लेंगे? मुझे नहीं मालूम, मेरा सरदार थोड़े। इट इज देयर हेडेक, दे विल डू इट। ऐसे बेदखली मैंने अपना पट्टे के लिए मांग की तो मुझे बेदखली ऑर्डर्स में? नहीं सर, ऐसे नहीं। ये तो बड़ा अन्याय, अपेरेंटली अन्याय लग रहा है सर। मैडम अन्याय आपको तब नहीं लगा कि जब आबादी लैंड जिसमें कि छोटे टुकड़े करके लोगों को रहने के लिए दिए जाते हैं,
और हजारों लोगों की जमीन के ऊपर आपने कब्जा कर रखा, तब आपको अन्याय नहीं लगा? नहीं, मुझे नहीं लगता ये 5 एकड़ Yeah, merely because the person has he is a very poor man. हाँ मैडम दिख रहा है, a person who has engaged Madam Verma. No, Lordship, certainly not. This I have I don't know whether he has become poor after. this I have accepted the brief only because this person is extremely poor, unable to bring up his cause. हाँ मैडम, फिर वो तो ठीक है, I don't have any comments to make. Sir, आपने पर्सनल आपने अपने accept पर आपने- because of that. And आपने- I want to be just. I want to do justice to मैडम this मैडम case also. आपने पर्सनल बात की तो इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, Yes, sir. परंतु आपका जो स्टेटस और आपकी जो लेंथ ऑफ प्रैक्टिस है उसके हिसाब से कह सकता हूँ कि दैट ही माइट हैव बिकम पुअर सब्सिक्वेंटली. No, sir. No, certainly not. It was on a lighter side. It was on a lighter side. Don't take it very seriously. No, I take it as a compliment. I will take it as a compliment, sir. But, sir, if my lord will see his picture at page number 34, he will understand. My lord will understand. He's just not. मैडम पिक्चर You will- से क्या हो सकता है? एक बार देख लीजिए सर, पेज बिल्कुल, 34 देख पे, लेते हैं। और मेरे को समय दे दीजिए, मैं हाँ, 248 के ऊपर. मैडम समझ तो नहीं दे पाऊंगा. तहसीलदार के पास 248. मैडम मैं समझ नहीं. तहसीलदार कर सकता है. ऑन द रिपोर्ट देयर इज नो रिटन रिपोर्ट. इनका कहना है कि रिपोर्ट मैडम प्लीज कम टू पेज पैराग्राफ सॉरी सेक्शन 32. यस आप बार बार ऐसी बातें कर रहे हो, मैं अवॉइड कर रहा हूँ, तो चलिए आ जाइए, आप कानूनी रूप से बहस करते हैं. लॉर्डशिप. प्लीज कम टू सेक्शन 32 ऑफ MPLR कोड. लॉर्डशिप मेरे को इसमें प्लीज कम टू सेक्शन 32 ऑफ MPLR कोड मैडम. My lord, it will be very difficult to go to the I don't know madam, please come to this section 32. inherent powers of revenue courts Yes. to prevent abuse of the process of court lordship. To Madam, fine, that is your Sir. opinion, but the Sir. commissioner Sir, doesn't have any jurisdiction. That submission is incorrect. sir, The commissioner has a jurisdiction, whether it was rightly exercised or not, that is a different aspect. I am in settled possession of a particular property. Madam, this is not a civil suit. That's what I'm saying. I moved an application for patta, and then on top of that, you are allowing my appeal and saying that Bedakli. Fine, madam. Madam, उसमें repeat भी करेंगे तो क्या होगा उससे? Sir, I have 248. understood the facts. No, certainly, sir. Ah. But let me also be satisfied. 248. Madam, का मेरे को थोड़ा सा- madam. मेरे को 248 का Madam, you research- will get 45 days to file WA. नहीं, writ appeal नहीं, sir. बिल्कुल, he is not capable. Otherwise, I would have said it. I would have said it. He is not capable for writ appeal, sir. Fine, madam. In fine. writ appeal जो इससे पहले इसके इसलिए तो आपकी ज्यादा जिम्मेदारी थी कि आप पूरी मेहनत से पढ़ के आते. सर मेरी जिम्मेवारी के कारण इसको मत वो करिए. मैं नहीं करें, मैं- कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, मैं अपनी तरफ से भी रिसर्च करूंगा. नहीं सर मैं ना करूँ रिसर्च. नहीं नहीं सर नहीं सर इसको मंडे को मैडम मैं क्यों ना रिसर्च करूँ? Because- Do you expect a judge that he should pass an order without going through the law and as well as the file? sir then we will not be benefited. When Why? my lord in this court the best part is that when there is argument between then the entire persons who are sitting, the counsels and otherwise, they get benefited. Okay, I will direct my staff to circulate the certified copies free of cost to every lawyer who is sitting. सर मेरे को मंडे के लिए No, madam, I will not be able to adjourn it. तो इसको पास ओवर कर दीजिए. मैं अभी हाँ, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है. आज बस सुनना है. तो आप सर इसमें एक गरीब का बहुत ज्यादा वो है. It is may be my fault. 248 पे मैंने नहीं किया. कोई बात नहीं मैडम, अभी तो अभी समय है. सर, आपने पासवर्ड कहा, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. सर इसको मंडे को अगर रख लेंगे तो मंडे को पासवर्ड नहीं हो सकता. मंडे को पासवर्ड आज ही का होगा. मंडे को मैं करूंगी ना सर बहस. तो I will be prepared and this Madam, don't give a certificate to you that you have come without preparation. सर इस point पे Specifically, when the court is not ready to give such a certification because of your previous arguments. On various occasions, you have argued, and even as an advocate, I had seen you arguing the cases with so much of authority and vehemence. I cannot think that you have appeared without any preparation. preparation है. I have never seen you lacking behind, because as a lawyer, I was not in a position to understand the real facts, but as a judge, I know what the facts are. Yes. And when I am not ready to give you a certificate that you have ever argued without any preparation, and I will not give you this certificate in the future also. You may try your level best, but I will not give that certificate. सर मैं इसको 181 और 185 के ऑक्यूपेंसी टेनेंसी के ऊपर लेके जाके I will बिल्कुल आप कीजिए, बिल्कुल लेकिन- कीजिए. बट सर मैडम 185 में ऑक्यूपेंसी टेनेंस है 1954. तो मैं 1954 when this court. 1970 से तो मैं हूँ ना. मेरे तो क्या हो forefathers- गया? मेरे forefathers हैं इसमें. अच्छा This particular land अच्छा। belong to मैडम आप दीजिए ना, आप दीजिए ना मेरे को खसरा तो बताइए. वो मैंने नहीं किया ना सर. मैडम क्या करूं? एडमिशन स्टेज पे था. मुझे आई थॉट दैट इट इज अ मैडम मेरी कोर्ट में एडमिशन इतना इजी नहीं है.
इसलिए तो थोड़ा सा टाइम और ये मैं मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गया मुझे आए हुए यहाँ पे। आई हैव आर्ग्यूड कपल सो मेनी टाइम्स बिफोर दिस ऑन फाइन मैडम, दैट्स नो डिफिकल्टी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि दैट यू ऑलवेज ट्राई टू रन अवे, मैं वो तो कह नहीं रहा हूँ, उल्टा मैं आपको ये सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। Whenever you argued the case, you argued with full preparation. The outcome is the immaterial for me, at least for me. Whenever I put a question to you, you try to give answer. Whether it was acceptable or not, that is a different aspect. But my assessment is whether the lawyer is in a position to give answer or plausible answer or not. Acceptable or non-acceptable की बात मैं नहीं करता हूँ. Plausible, because once you are relying upon the law, then it is for us to say कि whether it is acceptable or not. सर बट मैंने कभी नहीं देखा कि आपने कुछ ऐसी बात कही हो कि जिससे लगे कि यू आर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम द क्वेश्चन. नेवर सर. यू नेवर डिड दैट, सर इस एंड आई विल नेवर गिव अ कॉन्ट्ररी सर्टिफिकेट. आई एम ऑब्लाइज्ड सर. Even if you make all hard works for that purpose, still I will not give. Sir, there was no inquiry, but they say that there is inquiry and you have been found in illegal No, madam. possession. It is your submission. I am relying on your admission that you are in possession from 74. Sir, No problem. I am not disputing that aspect. I am considering the submission by taking it for granted that you are in possession from 74. I am considering your submission by taking it as granted that you had moved an application for grant of patta. You have encroached up, you are in possession of 5 acres of Abadi land, which could have catered the needs of 1,000 landless persons. 5 एकड़ कहाँ से मिला सर? 5 मुझे नहीं मालूम मैडम, आप ही कह रहे हैं. 5 एकड़ मैंने नहीं कहा. 5 एकड़ कहाँ कहा मैंने? नहीं कहा नहीं. तो मैं- हमको सुनाई दे गया था. 5 तो एकड़ आप बता दो मेरे को. आप सर- मैडम आप आइए, इम्प्यून ऑर्डर के पैराग्राफ 2.1 में 5 एकड़ का पट्टा दिए जाने का निवेदन किया गया है. यहीं से आपने कहा था. मैडम ऐसे 90% लॉयर्स हैं, हम एकदम से उनकी बातों को क्रॉस चेक नहीं करते. हम वो कहते हैं, हम मान के चलते हैं कि फैक्चुअली सही कह रहे होंगे. आप आ जाइए कलेक्टर के ऑर्डर पे भी पैराग्राफ 3, ग्राम मेंडोरी में 5 एकड़ भूमि का पट्टा प्रदाय किए जाने का निवेदन किया है. And also paragraph 5, लाभार्थी उक्त भूमि से लगी हुई अन्य भूमि 5 एकड़ सर इसमें पर इनका पट्टा चाहता है. कमिश्नर का आप क्या भी हैरान है ना कि आबादी लैंड में 5 एकड़ कैसे हो सकता है. है? ये तो आई एम आल्सो सरप्राइज्ड हाँ, यही तो मुझे भी हैरानी हो रही है. ये 5 एकड़ का दिस मस्ट नॉट बी इंटेंशन सर. इसमें व्हाट ही वांटेड इज ही माइट हैव वांटेड टू डेमोंस्ट्रेट दैट इसको मैंने 5 एकड़ को मैंने इतना गौशाला और मंदिर और ये सब करके पोजेशन मैंने तो बनाया नहीं, है. पोजेशन कब्जा कैसे होगा? कह दो ना कि मुझे सिर्फ मेरा मकान चाहिए, बाकी सब आप डिमोलिश कर दो. आई एम रेडी टू रिकॉर्ड योर स्टेटमेंट, और देन बाय ट्रीटिंग यू एज ए लैंडलेस पर्सन हम कह देंगे कि चरनोइये की आबादी चेक कर लो सिर्फ मकान के लिए. इतने में हम रिमांड कर देंगे. बट मेक अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट that you don't want to claim any title or right over the remaining land, because according to the state it is a Chernoi land, according to you it is an Abadi land. If it is an Abadi land, then you yourself are surprised that how it can be 5 acres. Once you have been taken by surprise, then you can just imagine मेरी क्या सोच हुई होगी. अरे नहीं, गलत हो गया. नहीं वो नहीं. इसमें ये है कि देयर हैज बीन इंक्वायरी बाय द मैडम आप पैराग्राफ 3 तो देखिए कलेक्टर को. चलिए कमिश्नर ने तो जो भी आपका कहना हो सही है गलत है वो तो बाद में देखेंगे. पैराग्राफ 3 में देखिए, इस प्रकार आवेदक का 0.20 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा है. आवेदक द्वारा पेंडोरी में 5 एकड़ भूमि का पट्टा प्रदाय किए जाने का निवेदन किया है. तो आप अगर कह रहे हैं कि ये पेड़ भी ले लो, ये खेत भी ले लो, ये गौशाला भी ले लो. हाँ सर, इसको मंडे को कर लीजिए. मैं थोड़ा सा लेट मी सर. चलो देखता हूँ मैडम, सर मंडे चल देखता हूँ इसको. और एल्स पास होगा. हाँ आज तक के लिए तो पूरी लिबर्टी है. आज की लिबर्टी. हाँ पूरी. आप तो 4:30 बजे तक बता दीजिए, कोई इशू नहीं. कोई इशू नहीं मैडम, आज का तो कोई इशू नहीं. मैं तो जो डिसमिस इन डिफॉल्ट भी करता हूँ वो कभी भी मैं 4:30 से पहले या उठने से पहले कभी साइन नहीं करता ऑर्डर. पास ओवर
मैडम मेरी बात तो सुनिए, जो मैं डिसमिस इन डिफॉल्ट भी करता हूँ, मैं शाम को उठने से पहले तक कभी साइन नहीं करता, क्योंकि जैसे ही डिसमिस इन डिफॉल्ट होता है यहाँ से मैसेज जाता है, ऑल दोस लॉयर्स हु आर इंटरेस्टेड इन आर्ग्यूइंग दे कम रशिंग के सब सुन लीजिए, हम सुन लेते हैं, और जो 4:30 तक भी रिक्वेस्ट नहीं करता, हम मान लेते हैं कि इनको तो कोई तकलीफ नहीं है, तो हम साइन कर देते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो 2 फाइलें मेरी अभी भी टेबल पे रखी हुई हैं, जो प्री लंच सेशन वाली थी, हमने साइन नहीं की है, टाइप्ड रखी हुई है, हमने कहा नहीं, अगर ये 4:30 से पहले रिक्वेस्ट होगी, आई विल हियर दिस केसेस। डोंट ट्रीट इट एज अ पास ओवर कि सब पास ओवर में अब दोबारा नंबर नहीं आया, नहीं, यू हैव टू मेक अ सबमिशन कि सब मैं तैयार हूं, तो देन आई विल हियर यू। राइट, नेक्स्ट। घर के लिए अगर तैयार है तो, और बाकी चीजों के लिए देन माय लॉर्ड विल रिमांड इट। मुझे नहीं मालूम है ना, मुझे नहीं मालूम मैंने क्या करना है सर अभी। इसको मंडे को रख लीजिए सर। अच्छी बात है मैडम, चलिए ठीक है, चलो डिस्पोज ऑफ में रखो उसको। नहीं नहीं सर, पास हो जाए ठीक है। Sir, I have sought instructions. What has happened in 2016? I had moved for Patta before this honorable court. In that WP, there were direction. Consider my matter. तो उस पे एक प्रतिवेदन हुआ था, मैंने भी जो पता किया है उसमें ये है कि जो आबादी लैंड है जिसपे वो रह रहा है दैट इज डिफरेंट, जो पट्टे के लिए इसने अप्लाई किया है, मतलब चरनोई लैंड का एलिगेशन, अब आप क्या, नहीं उसका नेचर क्या, पट्टे जो अप्लाई किया है वो 5 एकड़ है, 2.5 एकड़ इसके एक लड़के के पास है, 2.5 एकड़ दूसरे, उसके भी लड़के हो चुके हैं, दैट इज एग्रीकल्चर लैंड, दैट इज नॉट, एंड इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड हिज नेम इज आल्सो देयर, एंड देयर इज प्रतिवेदन, देयर इज रिप्रेजेंटेशन ऑन इन बिहाफ एंड पर्सुएंट टू द ऑर्डर्स ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। सर एक मिनट ये देख लें फिर जी ये सब रिकॉर्ड पे लाना होगा लॉर्डशिप। नहीं मैडम, वो तो ठीक है, वो तो हम आपकी बात सब मान लेंगे, हम लिख देंगे कि आपके 2 बच्चों के पास है, 2.5 एकड़ आपके पास है, 2.5 एकड़ आपके बच्चे के पास है, 2.5 एकड़ दूसरे बच्चे के पास है, आपके पास कुछ भी नहीं, उसके बाद भी आप पिटीशन लैंडलेस पर्सन है। उसके बाद भी आप पिटीशन लगाए बैठे हो। नहीं नहीं अरे प्रॉक्सी पिटीशन हुई ना, when you are not in possession, so how this petition is maintainable? नहीं, नहीं, I am surprised that why you have made that submission. नहीं, But it is simple, as simple to dismiss this application. You are not in possession. I'm in possession, मेरे बच्चों के और मैडम मुझे नहीं मालूम, आपने कहा मेरे पास नहीं, मेरे एक बच्चे के पास 2.5 एकड़, दूसरे बच्चे के पास 2.5 मैंने एकड़। बताया है कि जो आबादी लैंड है उसका मैं समझ गया ना, मैं समझ गया, जो पट्टा मैंने मांगा है वो अन्यत्र 5 एकड़ है, मान लिया ना, और वो अलग से लगी हुई भूमि है, बहुत मान लिया ना। एग्रीकल्चर जो मैंने अपने दोनों बच्चों के मैडम सरकार कब से खेती करने लग गई? सरकार नहीं कर रही ना खेती, नहीं कर रही ना, तो पट्टा तो एग्रीकल्चर लैंड सरकार की नहीं होती है। यस लॉर्डशिप, तो अक्सर सरकार की कभी भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं होती है, सर इसीलिए इसलिए दे आर राइट दैट इट इज अ चरनोई लैंड। नहीं है ना चरनोई एनी हाउ मैडम प्लीज बताइए आगे। और लॉर्डशिप काइंडली सी एनेक्चर P1 पेज 14। माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका क्रमांक 1972/2016 में पारित आदेश दिनांक 18/2/2023 के अनुक्रम में तहसीलदार हुजूर, ये 2016 में मैंने फाइल किया है, अपन थोड़ा तेज चलेंगे अभी मैडम, द्वारा प्रकरण क्रमांक 147 इतने संस्थित करते हुए राजस्व निरीक्षक से वस्तु स्थिति प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। दिस लॉर्डशिप इज नॉट ऑन रिकॉर्ड which I should have filed। राजस्व निरीक्षक द्वारा जांच उपरांत ये जांच सब प्रतिवेदन हुए हैं लॉर्डशिप में अपीलार्थी द्वारा शासकीय भूमि की रकबा 0.020 हेक्टेयर पर कब्जा अंकित किया गया, ये जो है, और जिसके अनुसार तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए मूलतः कलेक्टर को प्रेषित किया। सो this particular representation which was given, so the land was found in my possession, और जो मेरा कब्जा बता रहे हैं कि जो सरकारी भूमि, वन थिंग इज क्लियर ना, आपका 5 एकड़ में कब्जा नहीं है, नहीं 5 एकड़ में मेरा कब्जा नहीं, बस तो फिर आपके पट्टे की दरखास्त नहीं हो सकती, दैट इज ऑल। आपको पट्टा कहाँ से मिल जाएगा? उसी के लिए मैंने अप्लाई किया है। तो मैडम सुनिए, एग्रीकल्चर ऑन दैट लैंड। मैडम फाइन, आप खेती कर रहे हो ना? हाँ आपने इंक्रोचमेंट किया हुआ है ना? सर मैंने इंक्रोचमेंट अरे हाँ या ना? नहीं किया है तो राइट्स बताइए, अगर किया है तो हाँ बोल दीजिए, झंझट खत्म। तो मेरे को रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पेश करने दीजिए मैडम, दैट वाज नो, डोंट डिक्टेट द टर्म्स मैडम प्लीज। लॉर्डशिप मैडम देखिए, मैं मैडम प्लीज, अपॉर्चुनिटी लॉर्डशिप, मैडम आप क्वेश्चन मत पूछा करो, गलत पूछेंगे। सुनिए, it was in the presence of number of lawyers including 2 designated seniors, nobody opposed that prayer, तो मैंने कहा ठीक है, I will stop asking the questions। आप देखेंगे 1 महीने से मैंने ड्रास्टिकली रिड्यूस किया हुआ है, फिर भी मुझे जब कभी कभार लगता है कि पक्षकार के लिए थोड़ा सा पूछना चाहिए, तो अभी भी पूछ रहा हूँ।
and very soon I will stop that also. ऐसे नहीं नहीं मैडम सॉरी, this was a इसलिए always a welcomed मैडम इसीलिए हमको ये सुनना पड़ता है कि मुझे ये भी फाइल करने दीजिए, मुझे वो भी फाइल करने दीजिए, Sir? मेरा नुकसान हो जाएगा. I am not in a habit of listening to all these arguments. in the revenue records. Whatever it may be, madam, it is your prerogative. You should have filed, you should have waited, you should have collected, and only you should have filed a full baked petition. So if you have decided, mistake of the council should not come. whatever it may be, madam, sorry. No, lordship. मैं बार बार सोचता हूँ मैं पूछना बंद कर दूं, मुझे बार बार ये But that परेशानी is होती है. always a welcome procedure, मैडम lordship. उसका We come नतीजा to ये what हो is the रहा resolution है, of the court. उसका नतीजा ये हो रहा मैं उस है दिन होती कोर्ट में, I would have stood up against मैडम, everyone, lordship. उसका नतीजा ये हो रहा है, आई एम बीइंग स्कोल्डेड कि इधर आप मुझे मौका नहीं देते, आप मुझे वो नहीं कर रहे, आप मुझे वो नहीं कर रहे. नहीं, lordship. मैडम व्हाई? आई डिड नॉट इनवाइट अ हाफ बेक्ड रिट पिटीशन. इट वाज योर प्रेरोगेटिव. अब आप कई बार होता है, अब आपने प्रश्न पूछा है, अरे आपने आर्ग्यू किया गलती करके, मैंने उसका क्वेश्चन पूछ लिया, आपने प्रश्न पूछा है. नो, दिस इज नॉट गुड. This did not. मैडम, click, दिस इज lordship. माय मिस्टेक व्हेन दैट आई एम पुटिंग क्वेश्चंस. The view of the court, lordship, is always the welcome procedure. We I don't know, madam, No. but it is not being welcomed. This is what I know. If I would have been there, I would have It been is the first not- person to have opposed it lordship is such not- kind of. It is not being welcomed. No, it is. Yes, sir. दुबे साहब, अब आप ये दुबे साहब, सही होता है. सर दुबे साहब, एक सेकंड. एक्शन करते हैं और वो देखा. दुबे साहब, जी सर. अगर हमको ये सुनना पड़े, अरे ये कैसा सुनना पड़े, ये आप अच्छा काम करते हैं, आप वो पानी का पानी, दूध का दूध कर रहे हैं. दुबे साहब, अगर आप ये कहें कि हम सुने कि आप हमको दस्तावेज पेश नहीं करने देते, आप हमको वो नहीं करने देते, सवाल इस बात का है whether by asking a question I am inviting trouble for myself, or I was asking the question for the betterment of the litigant. Betterment of the litigant. अब उसके लिए Betterment of the litigant. जस्टिस. दुबे जी, जस्टिस के लिए you are also a responsible officer of the court. अभी आपने कहा आप मुझे फाइल तो करने दीजिए, what does it mean? So that proper justice may be मैं meted क्या out to the करूं? litigant, lordship. मैं क्या करूं? हम लोगों के पास ऑलरेडी इतनी ज्यादा पेंडेंसी है कि आप ये देखिए कि आज एक केस 2 घंटे चला और अल्टीमेटली विड्रॉ हो गया, और जबकि उस ग्राउंड के ऊपर विड्रॉ हुआ which I had put that question to the designated senior at just 1 minute after 1 minute of the arguments. मैंने उनसे पहले एक प्रश्न पूछा था, मैंने बताइएगा सर इससे आपको नुकसान हो सकता है. नो, आई विल गो अहेड विद द आर्गुमेंट्स. एंड देन आफ्टर 2 आवर्स ही रियलाइज कि नहीं हो, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉब्लम सही था. अब आप बताइए कि सर और मैं क्या करूं? अब जब हमारे पास उस केस के लिए हम आज के फ्रेश केसेस भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं. अब आप ये बताइए मेरे को कि क्या हम एडजेंट करते रहे हर केस? आप कहिए तो हम चालू कर देते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. आई विल नॉट बी द सफरर. दुबे साहब सुनिए. आपको चलाना है सर. अरे सुनिए, मुझे 2 लोगों को देखना है, आपके पिटिशनर को भी और उस रिस्पोंडेंट को भी. आपके कहने के ऊपर न्याय के लिए केस बढ़ा दूं. व्हाट अबाउट द रिस्पोंडेंट? आपका कहना बिल्कुल सही है, कोर्ट मेरे को चलाना है. मेरे को जब चलाना है तो दोनों लिटिगेटिंग पार्टीज को देखना है. अच्छा, मेरे में तो नोटिस. यस मैडम, सॉरी, जब मुझे दोनों लिटिगेटिंग पार्टीज को देखना है तो कोर्ट चलाने के तरीके में आई नेवर कर्टेल योर आर्ग्यूमेंट्स. क्या आप कह सकते हैं कि हमने आपके पक्षकार के साथ अहित किया कि आपकी पूरी बहस नहीं सुनी? नहीं, अपॉर्चुनिटी तो एम्पल देते हैं. अब देता हूं ना सर, और क्या करूं? मैं तो इतना पूछता हूं कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाए और अधपका खाना आए, आप क्या करोगे? थ्रू. वही चीज है, वही तो चीज है. और तो और कोई एक वेटर बड़े एक ऐसे ऑकवर्ड सी तरीके से पसीना पोंछते हुए प्लेट पकड़ के लाए, फिर क्या करेंगे? इवन वी विल थ्रो. अगर आपने नई शर्ट सिलवाई और टेलर ने फाड़ के उसको रफू कर दी, फिर आप क्या करोगे? सर दूसरी बार बुलवा ली, एक अपॉर्चुनिटी दे देंगे सर. Don't throw. Kumaji, you are right. It is my duty to run my court. I have decided to give full opportunity to all the litigating parties. Besides this, sir, It is my duty to ensure that your arguments are not curtailed, but it is your duty also to ensure that the petitions are filed properly. अब
अगर आपके एंड के ऊपर गलती हो रही है, आफ्टर 1 आवर 2 आवर, इफ आई एम बीइंग स्कोल्डेड कि आप टाइम नहीं देते हो, नहीं ऐसे तो कोई नहीं बोल सकता, मैडम क्या बात करते हो आप? ऐसे नहीं, पॉसिबल नहीं। ओह, मैडम जी मैं कोई गप नहीं मार रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। सर आप इंटरेक्शन कर रहे हैं। मैडम जी मैं गप नहीं मार रहा हूँ यहाँ बैठ के। यू कांट बी साइलेंट इंस्पेक्टर, जज का काम गप साहब, दुबे साहब सवाल वो नहीं है, सवाल इस बात का है कि आपने प्रश्न पूछा, अब मुझे समय चाहिए। ये हाई कोर्ट में लेवल है क्या आर्ग्यूमेंट का? और हाई कोर्ट वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूँ दुबे जी? अब आप मुझे ये बताइए, 96 से 97% लिटिगेंट्स के लिए क्या ये फाइनल कोर्ट है कि नहीं? है, यस सर, इट इज Right? फाइनल कोर्ट। स्टीवन फार्म उसके कारण से मेरी और आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि नहीं, यस सर, ताकि अन्याय ना हो पाए। यस मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए आप लोगों को पूरा मौका देता हूं, और आप कहते हैं हमने तो आधी अधूरी पिटीशन फाइल की। मेरे एंड से कुछ कमी हो तो आप बताइए, आई एम रेडी टू इम्प्रूव इट। अगर आपको लगता है कि साहब आपने समय नहीं दिया, वो नहीं दिया, टू आर्ग्यू द केस, नॉट फॉर एडजर्नमेंट। सिंपली जी मैडम, आई विल Yes. नॉट एडजर्न, प्लीज कंटिन्यू Yes. विद योर आर्गुमेंट्स। Alright, sir. इन्होंने फ्रेश नोटिस इशू किया नहीं, और पैरा 5 में जो 5 एकड़ वाली बात थी उसमें ये है लॉर्डशिप, यह निर्विवादित है कि ग्राम शासकीय भूमि जो खसरा नंबर है वह तालाब व आबादी के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि में अपीलार्थी का 0.020 हेक्टेयर अनाधिकृत रूप से कब्जा है। उक्त तथ्य को भी स्वीकार किया तथा अपीलार्थी उक्त भूमि से लग कलेक्टर एंड कमिश्नर हैव अर्ड इन लॉ टू से दैट द एग्रीकल्चर लैंड इज चरनोई लैंड एंड देयर इज ए बैन ऑन गिविंग पट्टा ऑन द सेड लैंड। मेरे एप्लीकेशन पे लिखा हुआ है कि एक योजना के तहत इसी भूमि के बाजू में एक एग्रीकल्चर भूमि है जिसको पट्टे पे दिया गया है, उसी की तरह मेरे को भी इस प्रकार का पट्टा दे दिया जाए। दिस इज माय एप्लीकेशन। नाउ लॉर्डशिप काइंडली सी 181 ऑफ एमपी लैंड रेवेन्यू कोड। Government leases. Every person who holds land from the state government or to whom right to occupy land is granted by the state government or to collector or who is not entitled to own land as a Bhumi Swami shall be called a government leasee. So I am holding the agriculture land of 5 acres as a government leasee. Under the auspices of 181 only, I have moved an application before the learned Tehsildar, which was not considered, and I approached this honorable court in 2016. In 2016, this honorable court had directed, and then the matter has traveled, and they said he made a representation. They had made a report, and report has been submitted to the collector, and he said कि चरनोई भूमि पे आपको नहीं दिया जाएगा, whereas it is not चरनोई भूमि, it is agriculture. चरनोई भूमि is the open land which is जो महिषियों के लिए चरने के लिए रखी गई है, that is चरनोई भूमि, not agriculture land held by the petitioner lordship. It was under section 181, I applied for government lease lordship. इससे पहले हम सिविल कोर्ट पे गए थे, परमानेंट इंजंक्शन का मिला था, लेकिन टाइटल पे उन्होंने कहा था 30 साल आप अभी प्रूव नहीं कर पाए, तो वो नहीं बना है। That is of 2016 lordship. Thereafter lordship, in the revenue records, that may also be noted that in the revenue records, my name is mutated as the holder of the agriculture land lordship, and therefore I bring myself under occupancy tenants 185. And being an occupancy tenant lordship, अब whether I was holding this particular 1970 से तो मेरा कब्जा है, the present petitioner, इससे पहले से ही हमारा कब्जा चला आ रहा है। और जो मैडम सिविल सूट आपके खिलाफ डिसाइड हो गया दैट यू हैव फेल्ड टू प्रूव 30 इयर्स ऑफ पोजेशन, फिर आप कैसे बार-बार कह रहे हो उसको? वो लॉर्डशिप, मैडम वो चीज आपने डिस्क्लोज भी नहीं की, बट यू हैव डिस्क्लोज्ड इट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्गुमेंट। हाँ मैंने Once there is already a verdict, when there is इंस्ट्रक्शंस अभी लिया, और when there is already a verdict against you by the civil court, how can you reagitate the things for the for the purposes of possession? सर इसीलिए मैंने रिट पिटिशन जो की थी, वो मैंने आई हैव गॉन थ्रू दैट रिट पिटिशन, आई हैव टेकन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम माय क्लाइंट। वो रिट पिटिशन मैंने की थी, उसका ऑर्डर मैंने देखा है 1972/2016। दिस फैक्ट आई हैव ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। क्या दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि सर मैंने इंजंक्शन के लिए किया था, डिक्लेरेशन के लिए नहीं माना था। 1972/20 1972/2016 भैया ये फाइल बुलवा लेना। हाँ, तो उसमें ये हुआ था सर that the honorable court has passed direction that since already you have lost in civil suit but you have moved application for patta, fine, that's fine, that's पट्टे के लिए जो मैं आप उसके आपकी पट्टे की एप्लीकेशन की मेंटेनेबिलिटी नहीं कह रहा हूँ। हाँ। आप बार-बार कह रहे हैं ना 1970 मेरे प्रेडिसेसर्स हैं,
There is already a finding that at least वो नहीं, वो that is not the question. Question is that the commissioner has said and the collector has said that it is Charnoi Bhumi. fine, I have understood, madam. You are repeating again and again. Charnoi Bhumi नहीं, वो तो एग्रीकल्चर लैंड है लॉर्डशिप. Fine, fine. I have heard. रेवेन्यू पे रिकॉर्ड है, वो भी मैं I will file as an additional document. My lord may reserve it, but I will No, no, file no, this no. document That also. वो कुछ नहीं, ये तो कल सुबह तक तो अपलोड हो जाएगा. अच्छा, हाँ. हम लोग पूरा डिक्टेशन देके जाते हैं, मैडम. ठीक है सर, this is only my argument. Right. चल.